So we'll start with the revision of number system and continue with it. So in number system, the second thing which we have to do is to convert a rational number in decimal into p by q form. So convert a rational number from decimal form to p by q form, right? So decimal form to p by q form. Now we know that there are, the rational numbers can be written in two ways when we write it in decimal form, right? So one is when it is terminating decimal. So when it is a terminating decimal, in that case, we directly divide it by, the number of powers of 10, जितना कि decimal points है. So decimal places के हिसाब से number of zeros से we divide it and we convert it into p by q form. For example, let's say we have 2.35. So what will this be written as? 235 divided by 100. So there are two decimal places here. So we divide it by 100. Number of zeros will be equal to number of decimal places here. So 235 upon 100. So this is, so this will be equal to, so we either we can leave it here only, or in simplest form if you write, you divide it by 5. So you have 20, 47. So this is 47 upon 20. So this is the p by q form of a terminating decimal. Okay. Now if it is a non-terminating and repeating decimal, so for non-terminating and repeating decimal, so in this case, let's say we have 0.3 bar. Okay, so we have to convert this. So what we'll do, we write x is equal to 0.333 and so on. Now, which is same as 0.3 per bar. Now, how many digits are repeating? Because only one digit is repeating, we multiply this equation by 10 so that the decimal point shifts after one repetition. तो एक रेपिटेशन के बाद, बिकॉज एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक रेपिटेशन के बाद राइट को ट्रांसफर हो जाएगा ये. सो ये क्या बन जाएगा? 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन, जिसको हम लोग लिखते हैं 3.3 के ऊपर बार, राइट. अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट. सो ऑन डूइंग दिस, सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, वी विल गेट, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें 10x माइनस x, सो वी विल हैव 10x माइनस ऑफ x is equal to 3.3 बार माइनस 0.3 बार. तो ये जो डेसिमल के बाद वाला पॉइंट है वो तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचा इक्वल टू 3.3 बार एंड 0.3 बार, तो 0.3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा. You will get 3. 10x minus x is 9x. So this is 9x is equal to 3.
this implies x is equal to 3 by 9 or 1 upon 3. So this is the P by Q form. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now let us practice few questions based on this. अब इसी में अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, let's say second example is we have 2.42 पे बार, let's say इसको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में. So 2.42 पे बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं let x is equal to 2.42 42 42 and so on, right? जिसको हम लोग 2.42 का बार लिख रहे हैं, right? Now because there are two digits which are repeating, so we'll have to transfer this decimal point after one pair of a repetition, after these two digits which are repeating. So after every repetition we have to move. So because there are two digits repeating, we have to move this decimal points by 2 decimal points. So we'll multiply it by how much? 100. So this becomes 100x is 242.42 42 and so on. So this is 242.42 ka bar. Now subtracting. So this is, let's say, equation 1 and this is equation 2. So if we do equation 2 minus equation 1, so we will get 100x minus, this implies 100x minus x is equal to, see, 242.42 bar minus of 2.42 bar. So if you calculate this, you will get 240. So the value is equal to 240. Why? Because this decimal point gets cancelled out. So 240. So 100x minus x means 99x is 240, or x is equal to 240 upon 99. Now this can be cancelled out by 3 as well. So you can write 3 times 33, 3 times 80. So this is 80 upon 33. If you leave it at 240 by 99, that is also correct. That is not wrong. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now let's take another example where the repetition starts not just after the decimal point, but after leaving one or two decimal positions. So let's say we have 2.3547 और 47 के ऊपर बार है. 2.35 and then 47. बार जो है वो 47 के बाद के ऊपर है, मतलब 2.35 and repetition starts 47 47 47 and so on. 35 एक ही बार आएगा, repetition 47 का होगा.
सो इसके केस में लेट x इज इक्वल टू 2.3547 बार, दिस इज 2.35474747 एंड सो ऑन। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे उस पॉइंट पे जहां से रेपिटेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 डेसिमल आगे लेके जाएंगे। डेसिमल रेपिटेशन कहां से, 47 से स्टार्ट हो रहा है, तो पॉइंट को यहां शिफ्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम 100x इज इक्वल टू 235.47 पे बार, और दिस इज 2.3547 sorry 235.474747 and so on. Now after doing this, we will further move the decimal point again to a place after the first repetition has occurred. So first repetition of 47 has occurred after 2 decimal places. तो पहले इसके बाद हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस और मूव करना पड़ेगा, जिससे कि पहला डेसिमल जो रिपीट हो रहा है ना, पहला डिजिट जो रिपीट हो रहा है, जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसके बाद हम लोग मूव करें। तो ये मल्टीप्लाई सर हम इसे सीधे 10,000 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही ना, हमें तो फिर इसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, इसको नहीं करना है, मतलब इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है सर। 1000 करेंगे तो 10 मतलब 100 से फिर से कर दिया इस इक्वेशन को, तो 10,000x is 23547.47 के ऊपर बार, तो 2 डिजिट इधर लेके गया और उसके बाद 47 पे बार, मतलब दिस इज 235.474747 and so on, right? So now what you do, this is your equation 1 and this is 2 here. So what you will do, you will subtract 1 from 2, you will get 10,000 minus 100 is 9900x is equal to, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 23547.47 बार एंड 235.47 बार। तो ये तो डेसिमल वाला तो 0 हो जाएगा, राइट? अब 7 minus 5 is 2, 4 minus 3 is 1, 5 minus 2 3. So this is equal to 23312. So this will give you x is equal to 23312 divided by 9900. So these are the 3 possible cases which are being asked in exams. Clear बच्चों? So I didn't understand. Yes, sir. You didn't understand this one? No, sir. What we did is first our this is our number जिसको कि हम लोग p by q में कन्वर्ट करना है। So अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को वहां पे शिफ्ट करेंगे जहां से कि रेपिटेशन स्टार्ट हो रहा है पहले, है ना? तो इसीलिए इसको हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, 100x is 235.47, राइट? अब जब हम लोग पॉइंट यहाँ पे ले आए, उसके बाद हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे थे, जहां से रेपिटेशन एक बारी रेपिटेशन हो गया उसके बाद को पॉइंट को शिफ्ट कराना है, मतलब पॉइंट हम लोग का 235.47 रिपीट हो रहा है, उसके बाद शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि रेपिटेशन इस डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो हम लोग को पहले तो उस डिजिट पे लेके जाना पड़ेगा जहां पे कि रेपिटेशन स्टार्ट हो रहा है। हम लोग जब उसको वहां पहुंचा दिए 100 से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद फिर से इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 10,000, और ये पॉइंट जो है 2 डिजिट इधर मूव कर गया, 235.47 का बार वो रिपीट होता रहेगा।
अब इस नंबर से इसको सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और तब हम लोगों को वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये चीज को तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसके लिए दोनों तरफ डेसिमल पॉइंट पे 0.47 बाहर ही होना चाहिए, तो इसीलिए ये सारी चीजें करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. इज इट क्लियर कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन से चैप्टर का तुम लोग का टेस्ट हो गया है अभी तक? लाइंस एंड एंगल्स हुआ है मेरे ख्याल से, नंबर सिस्टम हो गया है ना एक बारी, Yes, sir. हो गया sir. पॉलिनोमियल्स भी हो गया है। Yes, sir, sir. हो गया sir. Yes, sir. हो गया. अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूला किसके किसके एग्जाम में आ रहा है हाफ ईयरली में? Sir, मेरे में नहीं आ रहा. Mine. That's coming my syllabus. सर मेरे में आ रहा है। Yeah. एक मिनट में पूछ लेता हूँ। दक्ष तुम्हारे आ रहा है? यस सर। आलिया आ रहा है आपके हीरोन्स फॉर्मूला? Sir, not got the syllabus yet. अतुल्य आ रहा है तुम्हारे? No sir. भूमि? Yes, sir. Then कुशाग्र and नमन? No, sir. सबने मुझे भेज दिया है अपना अपना हाफ ईयरली का सिलेबस, या कोई रहता है किसी ने नहीं भेजा? Yeah. भूमि तो शायद भेज चुकी है। ये कुशाग्र तुमने भेजा है क्या? Did you receive my syllabus, sir? Yeah, I have got your syllabus विमान। सर लेट मी चेक, मैंने शायद से नहीं भेजा। रुद्र तुम भी भेज दो एक तो, और सर मैंने भी नहीं भेजा, मैं भी भेज दूंगा. कुशाग्र तुमने भेजा है क्या? सर आई डोंट थिंक सो. सर अभी भेज देता हूँ. प्लीज भेज दीजिए आप भी ना, फिर मैं कंपेयर कर लूंगा ना क्या सिलेबस कॉमन है, तो उसके टेस्ट मुझे लेने हैं वो सब चैप्टर के, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। विवेक तुमने अपना सिलेबस भेजा था क्या? नो सर. भेज देना बेटा तुम भी। हाँ, हाफ ईयरली हो रहा है ना तुम्हारे स्कूल में? यस सर. भेज दीजिएगा आपको।
Now we'll do addition, subtraction, multiplication, division of irrational numbers, of real numbers basically. So operations on real numbers. Now let's say we have root 3 and 4 root 3. Okay. So if we have to add these, right? So, or what you can do is, let's say we take an example, 2 root 2 plus 5 root 3. And there is this another number which is 4 root 2 minus 3 root 3. Now if we have to add these two numbers, so let's say we are adding it first. So 2 root 2 plus 5 root 3 plus of 4 root 2 minus 3 root 3. So what do? You bring these like terms as in जो square root वाले same terms हैं उनको साथ में लेके आएंगे. So this is 2 root 2 plus 4 root 2 and then plus of 5 root 3 minus 3 root 3. इन दोनों में अब क्या है कि because root 2 को common ले सकते हैं तो root 2 को बाहर कर लेंगे. 2 plus 4 root 2 plus ये root 3 यहाँ पे हम लोग common ले सकते हैं. So इसको हम लोग अंदर 5 minus 3 root 3 लिखेंगे. 2 plus 4 मतलब 6 root 2. 5 minus 3 2 root 3. तो 6 root 2 plus 2 root 3. सिमिलरली अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता सो उसमें जैसे हम लोग नेगेटिव साइन में अंदर लेके चले जाएंगे ब्रैकेट के, जैसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते थे वैसे ही करेंगे. सो वी हैव 2 root 2 plus 5 root 3 minus of 4 root 2 minus 3 root 3. So this is equal to 2 root 2 minus 4 root 2. We'll bring them together and minus sign अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा. Plus 5 root 3 plus 3 root 3. Minus into minus is plus and that's why we are writing plus here. So this is equal to 2 root 2 minus 4 root 2 is minus 2 root 2. 2 minus 4 minus 2 होता है ना. हम लोग अंदर इसको ले आएंगे 2 minus 4 और root 2 बाहर और यहाँ पे 5 plus 3 और root 3 बाहर. 2 minus 4 minus 2 root 2 हो गया. 5 plus 3 8 root 3 हो गया. Clear है बच्चों? Yes, sir. Then third, let's say we have to multiply so if we have to multiply these, so we will have 2 root 2 plus 5 root 3 into 4 root 2 minus 3 root 3. So you multiply one by one means 2 root 2 into 4 root 2. उसके 2 root 2 तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 2 root 2 into 3 root 3
उसके बाद 5√3 को इससे करेंगे तो प्लस 5√3 इंटू 4√2 माइनस 5√3 इंटू 3√3. So 2 into 4 is 8. √2 into √2 is 2. 8 into 2 will become 16. Minus 6√6. √2 into √3 √6 हो जाएगा. 2 into 3 6 है. तो minus 6√6. 5 into 4 20 plus 20√6 minus 5 into 3 15 into 3 45. So this is, see, 20 minus 6 is 14√6. इनको साथ में सॉल्व कर देंगे. 20√6 और minus 6√6. Minus 45 plus 16 is minus of 29. So 14√6 minus 29 इसका प्रोडक्ट हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. Now we'll do rationalization. ये हो गया, सबने लिख लिया? Yes, sir. We'll do rationalization. रैशनलाइजेशन में अगर 1/√a वाला टर्म है, तो अगर इसको रैशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे √a से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर rationalizing factor is equal to √a. जिससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं. क्लियर है बच्चों? दूसरा है 1/a प्लस √b. यहां हम लोग ये वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, बट नंबर्स होंगे तुम्हारे एग्जाम में. तो 1/a प्लस √b का फॉर्म है अगर, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग? a माइनस √b से मल्टीप्लाई कर लेंगे. a प्लस √b का a माइनस √b क्या कहलाता है? कंजुगेट. प्लस के जगह माइनस साइन यूज कर लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट है. ठीक है? तो ऊपर नीचे a प्लस √b का कंजुगेट a माइनस √b है, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा? ये रैशनलाइज हो जाएगा. यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? So rationalizing factor is the conjugate of a plus √b, which is equal to a minus √b. क्लियर है बच्चों? तीसरा Yes, sir. 1/a माइनस √b अगर है, तो यहाँ ऊपर नीचे a प्लस √b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a माइनस √b का कंजुगेट a प्लस √b है. a माइनस √b into a plus √b, right? So why? Because so here rationalizing factor is
the conjugate of a minus root b, which is equal to a plus root b. Is it clear? Yes, sir. Then we have 1 by root a plus root b. यहाँ दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ ऊपर नीचे फिर से इसके कंजुगेट से, मतलब रूट ए माइनस रूट बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो रूट ए प्लस रूट बी को रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करें. सो हियर I'm writing short form of it. Rationalizing factor is the conjugate of root a plus root b, which is equal to root a minus root b. Clear है बच्चों? Yes, sir. Well, is there a similarity between the second and fourth one only? Same thing. Plus root b, here it is root a plus root b. इसमें रूट नहीं है, यहाँ रूट है. Then the fifth one, last one. One by root a minus root b अगर है, so is equal to 1 into root a plus root b divided by root a minus root b into root a plus root b. And again, the rationalizing factor is conjugate of root a minus root b, which is equal to root a plus b.
लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we'll do few examples on rationalization. Let's say we have to do rationalize 2 root 6 minus root 5. 2 root 6 minus root 5 divided by 3 root 5 minus 2 root 6. So, see here जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. So we can write it as 2 root 6 minus root 5 into इसका कंजुगेट माइनस है तो बीच में कंजुगेट प्लस हो जाएगा 3 root 5 प्लस और 2 root 6 divided by 3 root 5 minus 2 root 6 into 3 root 5 plus 2 root 6. Right? So this is equal to ऊपर बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 root 6 into 3 root 5 कर देंगे तो 2 into 3 6 हो गया 6 root 30 क्योंकि 6 into 5 30 है 2 into 3 6 है फिर 2 root 6 को 2 root 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4 into 6 is 24 minus root 5 into root 5 5 हो गया 5 3s are 50 and 2 root 30 minus 2 root 30 divided by देखो a minus b a plus b है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a minus b into a plus b a square minus b square यूज कर लेंगे सो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 root 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 root 6 का होल स्क्वायर है ना a minus b into a plus b तो a square minus b square होगा राइट सो see 6 root 30 minus 2 root 30 24 minus 15 है 9 6 minus 2 है 4 तो 9 plus 4 root 30 हो गया divided by a square minus b square 3 root 5 का whole square करोगे 3 3s are 9 into 5 कितना हो गया 45 हो गया minus 2 2s are 4 into 6 24 इसका स्क्वायर करेंगे 2 root 6 का तो 2 into 2 4 होता है और root 6 into root 6 6 हो गया 4 into 6 24 हो गया 3 root 5 का करते तो 3 3s are 9 root 5 into root 5 5 9 into 5 45 so this is equal to 9 plus 4 root 30 divided by 45 minus 24 is equal to 21 क्लियर है बच्चों Yes, sir. please write it down सबने कर लिया Yes, sir. Yes, sir. So I'm still
वो दूसरा एग्जाम्पल करें, 4√3 minus 5√2 divided by √48 minus √18 करके बताओ मुझे आंसर। सबसे पहले देखें कौन बताता है। सर कौन सा एग्जाम्पल? ओके सर। First of all, we'll write it in standard form. 4√3 minus 5√2 by 48 को क्या लिखेंगे पहले तो? 48 क्या है? 4 4 जा 16 into 3, तो इसको 48 को हम लोग लिख सकते हैं √4 into 4 into 3। इसमें से 2 4 है, एक 4 को बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा। और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 3 into 2, तो 2 3 है, एक 3 बाहर हो जाएगा -3√2। पहले तो Excuse me, sir. यस Sir, I got the answer. सर मी टू। क्या है आंसर? सर 9 plus 4√6 upon 15। आपका Sir, 18/30. 18/30। चलो देखते हैं किसका सही है ना, सॉल्व करें। अब इसको हम लोग को रैशनलाइज करना है ऊपर नीचे। ये 4√3 minus 5√2 को ऊपर नीचे 4√3 plus 3√2, इसका कंजुगेट -3√2 का +3√2 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4√3 minus 3√2 into 4√3 plus 3√2, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 4 जा 16 into √3 into √3 48 हो गया। 4√3 into 3√2 is equal to 12√6, 5√2 4√3 minus 20√6, 5√2 into 3√2, so 15 to the 30 minus 30 divided by 4√3 और ये 4√3 का होल स्क्वायर minus 3√2 का होल स्क्वायर। 48 minus 30 is 18, 12 minus 20 is -8√6 divided by 4 4 is 16 into 3, 48 minus 3 3 is 9, 2 is 18, so this is 18 minus 8√6 divided by 30। so इसको 2 से ऊपर नीचे कर दो, 9 minus 4√6 upon 15। इसका आया था ये? सर मेरा। ठीक है तुम्हारा। भूमि आप बीच में इसको गायब कर दिया आपने √6 वाले को। Yes, sir, I forgot. ध्यान रखना, आपको सब आता है फिर गलत हो जाएगा। बाकी लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें, सोए कम। सर सो नहीं रहे हैं। मतलब वही हुआ, सोए कम मतलब इन द सेंस कि यू जस्ट नीड टू पार्टिसिपेट। सोना इज जस्ट अ मेटाफॉर हियर। मेटाफॉर समझते हो ना? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. यस चलो मतलब रैशनलाइजेशन तुम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे।
दक्ष लिख लिया तुमने? यस सर। लिख भी रहे हो कि बस दिमाग में छापते जा रहे हो? सर दोनों। दोनों। लिखने से तो तुम्हें एवर्जन है, कलम वलम तो कम चलाते हो तुम, नहीं? ओके, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. पहला है a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n. ऐड हो जाता है पावर्स, ठीक है? सेकेंड, a to the power m divided by a to the power n, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है पावर्स. तीसरा, प्रोडक्ट मतलब पावर का पावर ले लेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है m into n, राइट? चौथा, a to the power 0 करते हैं तो 1 हो जाता है. पांचवा, 1 by a to the power n करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो a to the power minus n हो जाएगा. छठा, a to the power 1 by x करते हैं, so this is xth root of a, या x से कंफ्यूजन होगा, a to the power 1 by n कर लो, so mth root of a, ठीक है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, a to the power माइनस ऑफ m by n करेंगे तो मतलब a to the power n का, सॉरी, माइनस m by n है तो दिस विल बी इक्वल टू 1 by a to the power n का nth रूट. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. और इसी में a to the power प्लस ऑफ m by n है तो सेम चीज nth रूट ऑफ a to the power n. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. दो और लिख लो, a to the power m into b to the power n is equal to ab का common raised to the power n and a to the power m divided by b to the power n is equal to a by b common raised to the power n.
Now we are doing one example based on this. 81 raised to the power 6, 81 by 16 raised to the power minus 3 by 4 into 25 by 9 raised to the power minus 3 by 2. Okay. Divided by 5 by 2 raised to the power minus 3. So 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो 3 3s are 9 3s are 27 3s are 81, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3 by 2 और 2 raised to the power 4 16 होता है, तो 3 by 2 raised to the power 4 लिख लेंगे, raised to the power minus 3 by 4 into 25 by 9 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 by 3 का होल स्क्वायर raised to the power minus 3 by 2 डिवाइडेड बाय, इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? तो या तो अभी इस वाले पे डिवीजन नहीं रहने दो, पहले पावर पे कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 by 5 raised to the power plus 3 minus 3 को अगर पावर को मतलब पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था a to the power minus m is 1 by a to the power m। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? रेसिप्रोकल कर रहे थे, वही चीज किया, ठीक है। नाउ दिस इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 by 2 पावर का पावर मतलब 4 into minus 3 by 4, ये कैंसिल होता है। उसी तरह into 5 by 3 पावर का पावर मतलब 2 into minus 3 by 2, डिवाइडेड को into कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 by 2 raised to the power 3। क्लियर है बच्चों? ये 2 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे 3 by 2 है, 5 by 3 है और 5 by 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका माइनस 3 है, इसको प्लस करने के लिए क्या आ जाएगा? 2 by 3 raised to the power 3 into 3 by 5 raised to the power 3 into 5 by 2 raised to the power 3। जो सब का पावर 3 है, इन सबको कंबाइन कर दो, मतलब 2 by 3 3 by 5 5 by 2 raised to the power 3। कॉमन लेके बाहर कर लो पावर को, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 5 5 कट गया, तो ये क्या हो गया? 1 क्यूब हो गया, which is equal। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये चैप्टर खत्म हो गया, एक बस रह गया, वो अगली क्लास में मैं थोड़ी देर में करा दूंगा। बेसिकली हम लोग को जब 9.3 को प्लॉट करना होता है तब कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट वाले को, रूट अंडर 9.3। So this we will do it and then this chapter revision will be complete। Okay? प्रैक्टिस करो और जो क्वेश्चंस करो। आलिया, मैं क्या करूंगा, तुम्हारा वो स्टडी मटेरियल तो नहीं गया है तुम्हारे पास, तो मैं ये पहले चैप्टर के जितने क्वेश्चंस है वो तुम्हें भेज दूंगा, वो तुम प्रैक्टिस कर लेना एक बार। Okay, sir. Done, sir. जिनका हो गया वो जा सकते हैं। बाय एंड Sir, good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir.